अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मई सेल्फ मोहम्मद ज़क़ौल्ला आपका कन्नड़ा टीचर जो है SLC 10ನೇ ತರಗತಿ सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा में जो है 4th चैप्टर पार्ट 1 का SA 1 के लिए तक का जो है पार्ट 1 का जो टेक्स्ट बुक आता है उसमें हमें 4th चैप्टर हक्कीगूಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु ये ऑलरेडी पार्ट 1 में जो है कुछ हिस्सा मैं रीडिंग करको जो है और आपको समझा करूँ, तो उसके आगे का जो है मैं पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। सो आप पेज नंबर 27 निकालो, यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 27 पेज नंबर 27। तो यहाँ से पढ़ने वाला हूँ। ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಶಾಲೆ ಅದು। ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತದೆ। ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಐಕ್ಯಮತ್ಯಕ್ಕೂ ಗೂಡು ಇಂಬಾಗುತ್ತದೆ। ಗೂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಪಡುವ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಕುಶಲತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ। ಕೆಲವು ಕೀಟ ಉರಗ ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಬೇರಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದು। ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಣ್ಮೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಚೋಟುದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಚುತ್ತದೆ। ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾರೆಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲವು, ಒಳಗಡೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲವು, ಗೂಡನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅವಕ್ಕಿದೆ। ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ। ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಶೀತಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬದುಕಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಬೇಕು। ಮರುಭೂಮಿಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಹೊಡೆತ, ಪ್ರಖರ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲು ಗೂಡು ಬೇಕು। ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎತ್ತರದ ಮರದ ತುದಿ, ಕಣಿವೆ, ಬಿಲ, ದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು। ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣದೇಹಿಗಳು। ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪಳವಿಲ್ಲದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡಲು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗೂಡು ಬೇಕು। ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣದಷ್ಟೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ। ಅದರಿಂದಲೇ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಗಾದೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ। ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ। ನಭದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿ ಸಾಗರ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮಗಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಹಾರಾಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ಅನಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ। ಸಾಗರದ ದ್ವೀಪ, ಗಿರಿಶಿಖರದ ನೆತ್ತಿ, ಮನುಷ್ಯ ನುಸುಳಲಾರದ ನಿಬಿಡ ವನಶ್ರೇಣಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಣಿವೆ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವ ಶೀತಲ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು। ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಕುಲವೂ ಮೀರಿಸಬಾರದು। ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾದರಿ ವಾಚನ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದೆ। ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನು। ಸೊ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು। ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ I have explained this, just I will revise those points once। यानी हक्की गूड़िनली परिंदे के घोंसले में वी कैन सी कि हम देख सकते हैं उसके जज्बाती तौर से भी मामलात रहते हैं, जैसे कि पेन, खुशी, राइट, सैरोनेस, एंगर, एवरीथिंग वी कैन सी। और साथ में जो है उनका हैचिंग और खिलाना, गुड्डू को, काऊ गुड्डू को, और एक नई जान का आगे आना। तो इस तरह से दैट ऑल सिंग इमोशनल जो है जज्बाती तौर से ताल्लुक़ात देखे। उसके बाद समटाइम्स वो नेचुरल डिज़ास्टर को या फिर एनिमी समटाइम्स दे विल हंट, कभी शिकार कर लेते हैं दुश्मनानी जानवर या दुश्मन उनके या फिर इंसान, तो उनके शिकार का भी वो सामना करना पड़ता है, वो शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे भी हादसात उनके साथ होते हैं परिंदों के साथ, उनके घोंसलों के साथ।
हाँ, और कभी जो है नैसर्गिक विकोपा यानी नेचुरल डिज़ास्टर जो है, कुदरती तौर से जो फ्लड आ जाता है यानी तूफ़ान आ जाता है या बरसात आ जाता है, उसे भी जो है कभी कभी उन्होंने जो निशाना बनते हैं, कभी कभी उसका भी सामना करके जो है उनके साथ हादसा होते हैं। फिर भी ये जो है जीते हुए जाती हिम्मत से। तो उनके नेक्स्ट में वैकेंसी कलाविदन सोपाग्नते, जो आर्टिस्ट का जो है टैलेंट भी उनके अंदर देखे जा। जस्ट मैं बोले, जस्ट एक बार आपको एक पॉइंट रिवाइज करके आगे जा रहा हूँ। कलाविदन सोपाग्नते और साइंटिस्ट का जो है तंत्रज्ञान भी इसके अंदर जो है मिला जुला जो है करते हुए जाती है, यानी कोऑर्डिनेशन रहता है, समन्वयಗೊಂಡಿದೆ। अब नेक्स्ट उसके आगे का हुट्टिद मक्कಳಿಗೆ, तो यहाँ से कर रहा था मैं, हुट्टिद मक्कಳಿಗೆ यानी पैदा होने वाले बच्चे या उन अंडों से निकलने वाले चूज़े, बदुकिना यानी ज़िंदगी का जो है, जो पैदा होने वाले उन बर्ड्स के जो बच्चे हैं, उन चूज़ों को पाठा हेಳುವ यानी सबक सिखाने वाला, लेसन टीच करने वाला, शाले अदु, इट्स ए स्कूल where they have been taught a lesson, where next निर्जीव वस्तुविनंते, एक अंडा जो है वी कैन सी इट्स ए देर इज़ नो लाइफ, एक नॉन लिविंग थिंग्स के जैसा दिखता है। विच वन? एग। इफ़ यू सी द पिक्चर, तो मैं पिक्चर के साथ देखो तो एक निर्जीवा, एक उसके अंदर जान नहीं है, बेजान जैसा चीज़, बेजान जैसा चीज़, निर्जीव वस्तुविनंते, नॉन लिविंग थिंग जैसा, नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीज़, थिंग जैसा नज़र आने वाला, काणुवा नज़र आने वाला, मोट्टेगे यानी अंडों को, एग्स को, मोट्टेगा तो एग्स को केवल सिर्फ और सिर्फ स्पर्शदिंदले यानी उनका सेका देने से, उनके जो है लगने से, एक उनके परिंदे का जो है अंडे देती एक बेजान जैसी चीज़ नज़र आती है, सिर्फ इसको सेका देने से यानी लगने से ही सिर्फ उसमें जान आ जाती है। वी कैन सी हियर, तो उनमें भी जो है जान आ जाती है, सिर्फ उन अंडों को सेका देकर जो है एग्स को निकालते हैं। देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे अंडे को सेका दे रहा है तो उसमें जान निकालता है। इसी तरह एक परिंदा उसमें से अंडों से चूज़ों को निकाला, यानी बेजान जैसी चीज़ में एक जान आ जा रहा है। ये चीज़ हमें परिंदों में देख सकते हैं। वी कैन सी इन द एनिमल्स, बर्ड्स में, यानी एक जानवरों की मखलूक़ात में देख रही है। लेकिन इंसान को अब नसीहत कर रहे हैं ऑथर इस लेसन के, और बता रहे हैं कि अस्पृश्यते यानी अनटचेबिलिटी बोलती नहीं, उसको बोलती अनटचेबिलिटी, तो इसको बोलते हैं अस्पृश्यते। यानी अभी भी कुछ हिस्सों में इंडिया में, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मानते थे अनटचेबिलिटी का, तो नीची जात, पिछड़ी जात वालों को जो है उनको कुछ भी देना है तो उन्होंने नीची जात, हमारी ऊंची जात करने वाले लोग जो है नीची जात, पिछड़ी जात को क्या करते, अगर पानी देना हो तो उनसे क्या हो जाता है, हमें टच कर डाले तो हमारी जात, हमारी मज़हब या हमारा कौम जो है उसको धक्का लग जाता है। अगर को पानी भी इतनी ऊपर से देते कि उनको कहीं कांटेक्ट ना आ जाए, ये चीज़ भी ना कांटेक्ट में आ जाए। अगर उनको रकम या पैसे देना हो, वी कैन सी हियर कितने दूर से कितने ऊपर से उनको पैसे डाल रहे हैं, यानी उनको टच होगा तो इनकी ज़ात कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये नीची ज़ात के लोग हैं, तो इनको दूर ही रखना, इनको उतना लगना नहीं, क्योंकि कांटेक्ट में अगर ये चीज़ आ गई तो इससे ख़राब हो जाता है और हमारी ज़ात को जो है धक्का लग जाता है। हमारी ऊंची ज़ात है, इनकी नीची, इस तरह का अपर कास्ट, लोअर कास्ट मानते थे, राइट। अभी भी कुछ हिस्सों में है, लेकिन बहुत पहले बहुत ज़्यादा था। तो इन अनटचेबिलिटी को, इसको जो इस किस्म के जो रकम को जो है अपनाने वाला इंसान अपने माहौल में ये पैदा कर डाला, किसी की ऊंची किसी की नीची ज़ात करके, और हमें छू तक भी नहीं। लेकिन परिंदे से हमने ये सीख मिल रही है कि वो एक छूते हो, एक परिंदा होकर, एक मखलूक होकर, वो एक संजीवनी का तो एक लाइफ देने वाली एक मूलिके बोलती, उसको बोलती संजीवनी, मतलब एक जान देने वाली एक किस्म का जो है पौधा या फिर एक किस्म का पत्ता ये होता ना, उसको बोलती संजीवनी। यानी एक सिर्फ छूने के सहारे से
जो है परिंदा हम ना टीच कर रहा लेसन है, किस तरह से मैं एक बेजान चीज़ में अंडे से चूज़ा निकाल रहा हूँ, लेकिन ये इंसान तुम देखो, तुम इंसान होते हुए, अच्छे अक्ल वाले इंसान होते हुए भी क्या कर रहे हो, आप मज़हब के नाम से लोगों से दरमियान दूरी बढ़ा रहे हो और मज़हब के नाम से लोगों को अलग अलग कर रहे हो, इस तरह के अनटचबिलिटी को फॉलो कर रहे हो ना, तो उनको हमना सबक सिखा रही है, पाठ हेಳುತ್ತದೆ किन्न ये परिंदे भी हमना सबक सिखा रही, ताई मक्कड़ और साथ में घूंसला हमने सब सबक सिखा रहा है घर को। और मक्कड़ कौटुंबिका यानी फैमिली का जो बॉन्डिंग रहता है, कौटुंब फैमिली बॉन्डिंग ऐक्यमत्य को यानी फैमिली बॉन्डिंग को जो है गूडु इंबागुತ್ತದೆ, गूडु यानी एक नेस्ट जो है, नेस्ट बिकम द बेस्ट वे, बिकम्स बेस्ट वे यानी एक अच्छा रास्ता बन जाता है कि एक फैमिली की बॉन्डिंग बने हो, परिंदों के बीच में भी जो है एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाए। ये चीज़ हमें परिंदों का घोंसला सिखा रहा है और अनटचबिलिटी को नहीं अपनाना, इंसान तुम होते हुए सब मखलूक़ात में एक ऊंची अखलाक रखने वाले इंसान तुम क्यों इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहे हो जो कि हम ही जो है फॉलो नहीं कर रहे, एक बेजान चीज़ को भी जान डाल रहे हैं घर को बोर्ड। साथ में ಗೂಡು, ಗೂಡು यानी नेस्ट, राइट, गूडू हक्कीगळल्लिरुव यानी बर्ड्स में रहने वाले तंत्रज्ञान यानी टेक्नोलॉजी, अलग अलग किस्म की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, राइट। तो एक टेक्नोलॉजी को ये गूडू एक नेस्ट जो है परिंदों की टेक्नोलॉजी को अವು ಪಡುವ ಶ್ರಮ यानी वो पढ़ने वाले मुश्किलात को, वाक़े को ಮತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ कुशलते को, और जो वो अपने अंदर ही वो स्किल्स कर्तव्य यानी नेस्ट जो है एक परिंदे का घोंसला जो है परिंदों ये दर्शाता, ये दिखाता कि हम ना कि उनमें का जो टेक्नोलॉजी का एक स्किल और वो पढ़ने वाली मेहनत, क्या पढ़ती मेहनत, उनकी टेक्नोलॉजी और उनका जो है स्किल्स जो है, ये चीज़ों को एक मिरर जैसा, कन्नड़ी हिडिदा कन्नड़ी एक मिरर जैसा एक आईना, उनका घोंसला जो है एक आईना हमना कि उन्होंने किस तरह से मेहनत पढ़ती, किस तरह से अपने जो है फ़न को दिखाती, कुशलते फ़न को दिखाती और किस तरह से वो मेहनत पढ़ती और किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं अपने घोंसले को बनने के दौरान, नेस्ट को बनने के दौरान। ये चीज़ को तो देख सकती है, एक बी के सहारे उन्हें नेस्ट कैसा बदलता है। तो ये नेस्ट एक घोंसला जो बनता है तो उनकी एक कितनी मेहनत रहती है, श्रमा, हाँ राइट। बाद में यह टेक्नोलॉजी वी कैन सी, कैसा ऊपर से लटकते रहना, नीचे लगना नहीं, पत्ते ऐसे सच बनना, कि तंत्रज्ञान है, टेक्नोलॉजी, श्रमा, मेहनत, कुशलते, उनके जो है फ़न, कैसा उन्होंने कर्तव्य, फ़न, कुशलते दिखा रही करने का एक मिरर जैसा, एक आईना जैसा। ये घोंसला जो है उनका आईना कि वो कितने कर्तव्य दिखा सकते हैं परिंदा होकर भी, करने का एक आईना कर को आईने के सहारे बोल रही हूँ। ऑथर नेक्स्ट बोल रहे हैं केलवु कीटा, और कुछ इसके अलावा केलवु कीटा यानी कुछ कीड़े, सम इंसेक्ट्स, उरागा का तो स्नेक, सांप, इनके अलावा परिंदों के अलावा कुछ रकम के जो कीड़े हैं इंसेक्ट्स वो, और सांप किस्म के जो नस्लें हैं संतति वो, अವು मत्तु और कुछ सस्तनीगढ़ और कुछ मैमल्स भी। मैमल्स के तो ऑलरेडी बोली तुम्हें फर्स्ट पार्ट में मालूम रहता है किस तरह से सस्तनीगढ़ कर को बोलती है, उनको क्या बोलती। तो मैमल्स भी जो है कुछ गूडू कट्टुत्तवे, इनके परिंदों के अलावा भी सभी कीड़े नहीं, कुछ कीड़े, केलवु कीटा और कुछ जो है सांप किस्म के नस्लें और कुछ किस्म के मैमल्स भी जो है यानी सस्तनीगढ़ भी जो है वो अपना घोंसला बनते हैं कर को बोल रही हैं ऑथर कृपाकर सेनानी। तो बोले नेक्स्ट देख सकते हैं तुम्हें कुछ इंसेक्ट्स, कीड़े इनको बोलती, कीटा कीड़ों को इंसेक्ट्स, उरागा का तो सांप, सांप की पिक्चर भी है कैन सी। कीटा ये कीटा हुआ यानी कीड़े, और कुछ सांप और कुछ मैमल्स, ऑलरेडी मैं पिक्चर में बताया हूँ मैमल्स किसे बोलती। तो मैमल्स भी जो है इस तरह के जानवर भी जो है, कुछ जानवर है जो है अपना घोंसला बनती अपने लाइफ को बिताने के लिए या वहाँ पे लेसन की टीच करने के लिए किस तरह से सर्वाइव करे। तो ಆದರೆ लेकिन ಹಕ್ಕಿಗಳಷ್ಟು, लेकिन ಹಕ್ಕಿಗಳಷ್ಟು परिंदे होते, ಆದರೆ
ಹಕ್ಕಿಗಳಷ್ಟು ಲೇಕಿನ್ ಪರಿಂದೆ ಒತ್ತೆ ಲೇಕಿನ್ ಆದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ परिंदे होते कौशल्यದಿಂದ स्किलफुली टैलेंट स्किल से गूಡು कट्टुवा यानी घोंसले को बना परिंदों के उतला अच्छे से जो स्किल से जो घोंसला बनने का चाकचक्यते दो जो कर्तव्य जो है बेरावुदक्कु बारदु दूसरों किसी को नहीं आता। लेकिन कुछ कीड़े और कुछ सांप और कुछ मैमल्स भी घोंसला बनती हैं, लेकिन जितना कर्तव्य परिंदा दिखाता है अपने घोंसले को बनने में वो उतना स्किल्स और टैलेंट्स जो है दूसरे कोई जो है नस्ल में दूसरे किसी जानवर में जो है हमें या दूसरे किसी के किस्म के जो है लिविंग बींग्स में हमें वो देख सकते नहीं है को बोल रही ऑथर। और आगे बोल रही इल्ली वास्तुशिल्पिया इल्ली वास्तुशिल्पिया यानी आर्किटेक्चर बोलती नहीं उसको बोलती आर्किटेक्चर वास्तुशिल्पी आर्किटेक्चर को वास्तुशिल्पी या कल्पना का आर्किटेक्चर की जो यानी फ़न को तामीर करता नहीं उस फ़न को तामीर करने वाले को वास्तुशिल्पी ये फ़न को तामीर करने वाले की जो सोच है उसके जो टैलेंट है उसको कल्पने को साकारगुಳ್ಳುತ್ತದೆ। तो वो हिसाब से भी वो अपना घोंसला उसमें भी दिखाते हैं अपने फ़न को तामीर करने में जिस तरह आर्किटेक्चर दिखाता उस तरह का फ़न को तामीर अपने घोंसले को बनने में फ़न की तामीर जो है परिंदा दिखाता है। और बोल रही तो ना पिक्चर दिखाता हूँ आर्किटेक्चर या फ़न का तामीर तुम्हें देख सकती यहाँ एक आर्किटेक्चर जो है पहले प्लानिंग करता किस तरह से एक बिल्डिंग बनना है क्या क्या रहना है उसमें। तो फ़न को तामीर करने से पहले प्लानिंग चलते फिर उसको इम्प्लीमेंट होता है नहीं। तो एक आर्किटेक्चर वास्तुशिल्पी भी जो है तो ये तमाम चीज़ें तो वो भी जो है साकारगुಳ್ಳುತ್ತದೆ का तो उस तरह से वो भी जो है अपने इसमें कर्तव्य में दिखाते हैं कर को। अनेक वस्तुಗಳನ್ನು यानी परिंदों को बोल रही उसी तरह से अनेक वस्तुಗಳನ್ನು जिस तरह से एक आर्किटेक्चर जो स्किल इस्तेमाल करता है बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके जो कंस्ट्रक्शन करता है उसी तरह वो भी परिंदे भी अनेक वस्तुಗಳನ್ನು बहुत सारे चीज़ों को समन्वयಗೊಳಿಸಿ कोऑर्डिनेट करको यानी उनके ज़रिए से उनके बजाय उनके साथ इन चीज़ों के साथ साथ जो है मने निर्मिಸುವ मनुष्यನ ಜಾಣ್ಮೆಯು यानी इंसान जिस तरह से अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करको कोऑर्डिनेट करको अपना घर बनता है इंसान उसके अखलाक भी जो है कभी कभी ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ समटाइम्स ಈ ಚೋಟುದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮುಂದೆ ये छोटे से परिंदे के सामने जो है मुंदे नाचुತ್ತದೆ यानी शर्म आती यानी उनके सामने छोटा पड़ जाना उतना जो है अपना स्किल्स को अपने टैलेंट को परिंदे अपने श्रमा और जो है अपने कुशलते स्किल्स कर्तव्य और फ़न का तामीर जो है परिंदे जितना दिखाती हैं एक इंसान जो है बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करको या देख सकती क्या क्या जो है चीज़ों को इस्तेमाल करको एक घर कंस्ट्रक्शन करना का तो किस तरह से अखलाक का इस्तेमाल करको इंसान बढ़ता वो भी जो है छोटा हो जाता इन परिंदों के जो है घोंसले को बनने के सामने करको। यानी इतना कर्तव्य परिंदा अपने घोंसले में इतना चीज़ें दिखाता है इतना फ़न दिखाता है। अವು परिंदे बोल रहे साथर यानी परिंदे सीमेंट गारे अंतः यानी वो हमारे तरह सीमेंट गारे जैसा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने घोंसले को कंस्ट्रक्शन करने। तो मैं देख सकते हैं प्लानिंग कर रही कंस्ट्रक्शन करने घर होना क्या क्या चीज़ें होना ये वो सभी घर को लेकिन वो सीमेंट गारा इस्तेमाल नहीं करते आ वस्तुಗಳಿಗಿಂತಲೂ उन चीज़ों से भिन्नवाद अलग यानी सीमेंट गारे से चीज़ों से भी अलग रहने वाले चीज़ों को वस्तुವನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲವು। सीमेंट गारे के बदले वो अलग किस्म की चीज़ों को तुम्हें घोंसले में देखे जो है वो सीमेंट या गारा इस्तेमाल नहीं कर रहे उसके बजाय जो है कुछ ऑल्टरनेटिव थिंग्स अलग चीज़ों का जो है इस्तेमाल करके फ़न दिखाते हुए जो है अपने घोंसले को बनते हैं करको ये परिंदे अलग से चीज़ों को बनकर जो है दिखाती करको बोल रही हैं। इवन और क्या करती हूँ नो जिस तरह से हमें अपने घर कंस्ट्रक्शन होने के बाद अंदर का दीवार प्लास्टिंग करते ना उसी को बोल रहे हैं। ಒಳಗಡೆ या ಗೋಡೆಯನ್ನು अंदर की दीवार को भी जो है प्लास्टर ಮಾಡಬಲ್ಲವು जिस तरह से हमें प्लास्टर करती दीवार कंस्ट्रक्शन करे बाद जो है उसको प्लास्टर होता ना उसी तरह अपने अंदाजे से जो है अपने घोंसले का जो है प्लास्टर करते हैं अपने घोंसले को जो है प्लास्टर करते हैं।
अंदरूनी हिस्से को, जिस तरह से हमें घर को बनने के बाद, कंस्ट्रक्शन होने के बाद प्लास्टर करते हैं, वैसा उससे अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर ये भी प्लास्टर करते हैं। गूड़न्नु, साथ में उनके नेस्ट को, घोंसले को अंदಗೊಳಿಸುವ, उन्हें अच्छा दिखेंदे कर को, इट लुक्स ब्यूटीफुल, लेट इट लुक्स ब्यूटीफुल कर को, सौंदर्य पगने, यानी उसमें एक खूबसूरत का सोच भी जो है आवक्किदे, उसमें खूबसूरती आना, उसमें एक अच्छा ही दिखना करने का भी जो है उनके अंदर रहता है। ಆದರೆ ಎಲ್ಲ, लेकिन ये सब क्रियेಗಳಿಗೂ, इन सब कामों में अर्थविरुತ್ತದೆ, इन सब कामों में जो है माना है, मीनिंग है, और स्पष्टवाद उद्देश्यविरुತ್ತದೆ, एक मस्ट एक रीजनिंग रहता है, उसके पीछे एक मकसद है, एक बहुत बड़ा मकसद है। वी कैन सी अ बेस्ट रीज़न, एक ख़ास मकसद उसके अंदर रहता है। यानी इस पैराग्राफ में बोल रही परिंदे जो है किस तरह से अपना स्किल्स और टैलेंट का इस्तेमाल करके जो घोंसला बनती, वो उसका एक आईना ही है। घोंसला उनका मेहनत का एक आईना। इनोश नहीं, परिंदे नहीं, कुछ किस्म के कीड़े और सांप जो है, कुछ मैमल्स भी जो है घोंसले बनती, लेकिन जितना इनो अपना कर्तव्य दिखाती हैं परिंदे, वो दूसरे कोई नहीं दिखाते। यहाँ तक भी जो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके इंसान अपना घर बनता है, उसकी जो है अखलाक भी इसके सामने छोटी पड़ जाती है। ये सीमेंट, गारे, इस तरह की चीज़ों का तो इस्तेमाल करते नहीं, बजाय उनके अल्टरनेटिव चीज़ों का इस्तेमाल करके, इवन वो अपने जिस तरह से इंसान अपना कंस्ट्रक्शन होने के बाद बिल्डिंग का प्लास्टर करता हो, उस तरह से वो भी अपना जो है प्लास्टिंग करता है अपने घोंसलों का, और साथ में उसको खूबसूरती बढ़ाने की भी कोशिश करती। तो डेकोरेटिव एक नॉलेज भी उनके अंदर रहता है। तो इस सब के मकसद, ये काम के पीछे एक मकसद रहता है उनके, इसके पीछे जो मेहनत पड़ती है उसके पीछे एक कंप्लीट एक माना रहता है और एक मकसद रहता है। वो बोला ಎಲ್ಲ क्रियेಗಳಿಗೂ, लास्ट लाइन में ಎಲ್ಲ क्रियेಗಳು, इन सब कामों के पीछे एक माना है और एक ख़ास मकसद उसमें रहता है। तो आगे क्या बोलती देखेंगे बच्चों। हक्कीगळु, यानी परिंदे जो है घोंसला बनती हैं अपना। हक्कीगळु, परिंदे गूड़न्नु, यानी अपना नेस्ट, घोंसले को जो बनती, निर्मिसुವುದು या बिल्ड करती, निर्मिसुವುದು या बनते अपने घोंसले को, मुख्यವಾಗಿ मेनली खास तौर पे किस लिए बनती का, तो एक रक्षणेಗಾಗಿ, प्रोटेक्शन को, हिफाजती को, अपना और अपने चीज़ों का हिफाजती हो, राइट। हिफाजती होना, हमें जैसा घर में रहती हिफाजत होना, ठंड बारिश से है, अलग किस्म के जानवरों से, तो दे आल्सो नीड प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजती हो, उसके लिए सबसे पहले प्रेफर क्या करती हूँ, उन्होंने घोंसला बनने की वजह, रीज़न क्या कई को, तो रक्षणेಗಾಗಿ, ये 2 मार्क्स को पूछते हैं। हक्कीगळु गूಡು कಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು, वही व्हाट इज़ द रीज़न दे विल बिल्ड द नेस्ट घर को, तो तब तुम्हें ये आंसर लिखना, मुख्यವಾಗಿ रक्षणेಗೆ, मेनली का तो उनका प्रोटेक्शन को, हिफाजत को। शीत गाड़ी, ठंडी हवा, दूसरी का ठंडी हवा रहती है, यानी हवा तो कोल्ड विंड, ठंडी हवा। तीसरा बिरुगाड़ी, बिरुगाड़ी का तो तेज़ हवा, यानी उसको बोलती तूफ़ान, तूफ़ान को बोलती हैं बिरुगाड़ी। मಳೆ, रेन, कोल्ड विंड, तूफ़ान, बारिश, मಳೆ, प्रवाह, फ्लड, या जो है सैलाब, प्रवाह का तो सैलाब। यानी किस वजह से बनती उन्होंने नेस्ट अपना, एक प्रोटेक्शन, रक्षणेಗಾಗಿ, शीत गाड़ी, ठंडी हवा, बिरुगाड़ी, तूफ़ान, मಳೆ, बारिश, प्रवाह, फ्लड या सैलाब, इनके खिलाफ, विरुद्ध बदुकलो, इनके खिलाफ, ये चीज़ें आगे तो भी इनके खिलाफ जो है अपने आप को बचा को जीने के लिए, बदुकलो अवुಗಳಿಗೆ, यानी परिंदों को, उनको गूडु बेकु, नेस्ट होना उनको, ये नेस्ट या घोंसला होना उन परिंदों को, ये बता रही किस वजह से जो है घोंसला परिंदों को भी होना, रीजनिंग ऑफ द नेस्ट। और साथ में बोल रही उन्होंने क्या करती, मरुभूमि अंतहा, यानी रेतीले जैसे जगहों में, रेतीले जैसे जगह रहती नहीं, जैसे सैंड, कहाँ कहाँ भी देखो रेती, इस जगहों पे, मरुभूमि अंतहा प्रदेशदल्ली, मरಳಿನ ಹೊಡೆತ, यानी रेती ज़मीन में क्या होता है, कभी कभी तेज़ हवा है तो रेत उड़ने या को और एक कुदन पड़ती है, राइट। तो रेत पड़ने के टाइम में उन रेत के जो है मारों से बचने के लिए, रेत के जो है मार से बचने के लिए, और
होड़े था, किस किस वजह से नेस्ट उनको नेस्ट होना अगर को रेतीले ज़मीनों में इलाकों में उनकी रेत जब उड़को आती है उनका मार नहीं लगना कर को होड़े था। और उसके साथ प्रखर सूर्य रश्मि और तेज़ दरार सूरज की रोशनी या सनरेज जो है, धूप में हमें 12 घंटे इस दरमियान में जाते हैं तो कितना धूप लगती है ना, राइट। तो कुछ इलाकों में ज़्यादा धूप पड़ते रहते हैं, वैसे इलाकों में तेज जब सूरज की रोशनी पड़ती है प्रखर सूर्य रश्मि, उनसे भी बचने के लिए इनके अलावा मुंतादा इनके अलावा हवामान वैपरीत्य यानी वेदर जो है अप एंड डाउन होता है, वेदर वेरिएशन उनको बोलते हैं, वेदर वेरीज करता है, वेदर वेरीज उसको बोलते हैं हवामान वैपरीत्य यानी मौसम का जो है तब्दीलें आती, मौसम में तब्दीलें आती, उनको भी जो है उनके अगेंस्ट भी जीने के लिए प्रतिरोधी सलो यानी उन वैसा जो है मौसम में तब्दीलें आ गए तो भी तब भी हमना क्या भी नुकसान होना, उस वजह से भी गूड़ू बेकू, उस वजह से भी जो है गूड़ू नेस्ट होना। सो दिस आर द रीज़न वही द बर्ड्स नीड नेस्ट, इसलिए ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ कट्टुआ उद्देश्यवेनु कर पूछे तो ये तमाम चीज़ें लिखना तुम्हें, ये तो 2 मार्क्स को ये सब आ सकती हैं। साथ में इतना पॉइंट तो भी तुम्हें मैंडेटरी लिखना, और भी आगे आथर क्या क्या बता रही, साथ में किस लिए नेस्ट होना अगर को मोटे पूरा लिखे तो भी अच्छा 2 मार्क्स को, नहीं तो कम से कम इतने पॉइंट्स तो भी तुम्हें मेन लिखना चाहिए 2 मार्क्स को अगर पूछे तो। मोटे साथ में अपने अंडों को मरीगड़न्नू और चूज़ों को बचाने के लिए, तो रक्षण का कि हैंड बोल रही, फिर भी वो एडिशनली तुम्हें ये पॉइंट भी लिखे तो अच्छा रहता, जैसे कि हमने अंडे को और अपनी चूज़ों को बचाने के लिए परिंदों को नेस्ट चाहिए। साथ में तमन्नू यानी अपने आप को जो परिंदों को जो है बेटेयाड़ हुआ शिकार करने वाले कुछ जानवर आती हैं परिंदों को, जैसे देख सकती कभी सांप जो है शिकार कर लेता है, कभी लेपर्ड्स जो है यानी चीता तुम्हें बोलती नहीं बाघ बोलती कुछ जगहों में, तो वो पेड़ पर भी चढ़कर परिंदे को पकड़ने की काबिलियत रखता है, तो उन्हें कभी पकड़ को जो शिकार कर को खा लेता है। इस तरह के उनको शिकार कर को खाने वाले जानवरों से भी तप्पिसी ಕೊಳ್ಳಲು बचने के लिए वो क्या करती, ಎತ್ತರದ ಮರದ ತುದಿ क्या करती, कहाँ कहाँ घोंसले बनती, पेड़ों के अनी में, बहुत लंबे बड़े बड़े पेड़ों को चुनती, उन पेड़ों के अनी में ಎತ್ತರದ मರದ तुदी पेड़ों के अनी में तक जाकर बनती। साथ में कणिवे, कणिवे का तो वैली पिक्चर में देख सकती तुम्हें, तो उन्होंने परिंदे कहाँ कहाँ घोंसले बनती कर को, तो ये कोनो ಎತ್ತರದ मರದ तुदी यानी बड़े बड़े पेड़ों के अनी में बनती, देख सकती पेड़ा है बहुत, तो पेड़ों के अनी में बन सकती। नेक्स्ट ये वैली, वैलीज में कणिवे का तो ये वैली जैसा यानी खंदाखन जैसा इस तरह इसको बोलती वैली। इस वैलीज जैसे प्लेसों में भी जाको उन्होंने कणिवे में भी अपना घोंसला बनती कभी और बिला, बिला में भी बनती, बिला जो रहती बड़े बड़े उसमें, यानी उन्होंने कहाँ घोंसला बनती इन जानवरों से बचने के लिए, अगर कोई शिकार होने से बचने के लिए और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, तो पेड़ों के अनी तक जाको बनती, कभी इन वैलीज कने जाको बनती, कभी बिलों में जाकर बनती, कभी द्वीप आइलैंड और नीरिना मेले, कभी आइलैंड और कभी पानी के ऊपर भी जो है ये जाकर घोंसले बन सकती। तो बोलिया मैं इतना कहाँ कहाँ इन घोंसले बनती इनसे जानवरों से शिकारों से बचने के लिए का, तो एक ಎತ್ತರದ मरदा तुदी यानी दूसरे जानवरों से शिकार होने से बचने के लिए पेड़ों के अनी में जाको, ये पेड़ों के अनी में जाको बन सकती। और दूसरा वैलीज में कणिवे में जाको बनती। कणिवे, कणिवे वैलीज। नेक्स्ट क्या बोल रही हैं, और कहाँ बन सकती, द्वीपा बोलिया आइलैंड, तो आइलैंड्स में, आइलैंड देखो बीच में ज़मीन रहती है, पूरा इर्द गिर्द जो है पानी रहता है, तो इस तरह के पानी पर भी जो है जाकर वो आइलैंड्स में, इसको बोलते हैं द्वीपा, द्वीपा का तो आइलैंड।
आइलैंड पर भी जाको जो है वो नेस्ट बनती को न परिंदे, यानी ऐसे ऐसे जगह चूकती पंप अपने आप को बचाने के लिए, अपने चूज़ों को, अंडे को बचाने के लिए, अपने नेस्ट को बचाने के लिए पेड़ों के अनी तक जाते हैं। मरादा तुदी कड़ीवा ऑलरेडी बताया, वैलीज में, बिला बिल्लों में, द्वीपा का तो देखो ये आइलैंड को बोलती हैं द्वीपा, आइलैंड के ऊपर यहाँ तक भी जाको बनती है। नेक्स्ट नीरी ना मिले, पानी के ऊपर, यानी पानी के ऊपर भी समटाइम्स दे विल बिल्ड द नेस्ट। यहाँ पर भी जो है अब वो गूड़ू कट्टा बेकू, वो अपने आप को, अपने नस्लों को बचाने के लिए बेचारे यहाँ पे भी क्या बनते हैं, दे विल बिल्ड द नेस्ट, दे बिल्ड नेस्ट। नेक्स्ट बोल रहे ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ यानी अंडे रखने वाले रीढ़ की पीठ की हड्डी होने वाली, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ यानी अंडे रखने वाले, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ यानी रीढ़ की हड्डी, पीठ की हड्डी के जानवर प्राणिಗಳಲ್ಲಿ हक्कीगले यानी परिंदे अति ಹೆಚ್ಚು बहुत ज़्यादातर हीट बॉडी के, उष्ण देहिगलों को तो हीट बॉडी, परिंदे ज़्यादा हीट बॉडी के, अवुगला यानी उन परिंदों का देहद उष्णता नहीं, अपनी जिस्म की जो है गर्मी को बचाने के लिए, हीट को बचाने के लिए, अपनी गर्मी के हीट को बचाने के लिए परिंदे क्या करती हैं तो कापाड़लु ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ अपने बदन की जो गर्मी बचाने के लिए और साथ में ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ अंडों को बचाने के लिए, ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪಳವಿಲ್ಲದ ಮರಿಗಳಿಗೆ, और जो ऊन नहीं है यानी चूज़े निकलते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट फेदर्स सब नहीं आते, राइट, उनको बाद में धीरे धीरे करके आती हैं। सो ये फेदर्स आने के लिए और जो है उनके ऊपर ऊन आने के लिए, ऊन आने का वक्त लेता, तो उन चूज़ों को काव हैच करके जो उन्होंने जो एक गर्मी देती, गर्मी देखो उनको गर्म रखती, बेचन या गर्मी देखो उनको रखने के वास्ते क्या होना, अपने साथ साथ उनको नेस्ट भी होना, गूड़ बेकू, तो इन वजह से भी जो है परिंदों को नेस्ट होना, तो अपने आप को बचाने के लिए इस जगहों पे सब जाको बनती बेचारे, और अपनी जिस्म की गर्मी को बचाने के लिए, और किस लिए नेस्ट होना अगर को आगे बता रही हूँ, और अपनी बॉडी के जो है हीट को बचाने के लिए और अंडों को बचाने के लिए, और जो चूज़े अभी उनके पर नहीं निकला है तो उनकी हिफाजती के लिए भी, उनको गर्म रखने के लिए भी दे नीड द नेस्ट, गूड़ बेकू। और ये गूड़ जो नेस्ट जो है ताय गर्भाशयदले, माँ के जो पेट में, माँ के जो पेट में जिस तरह से भ्रूण यानी माँ के पेट में जो बेबी पल रहा हो उस तरह कितना सेफ रहता नहीं, उसी तरह गूड़िनಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳು, ये नेस्ट के जो रहती उसमें के अंडे और चूज़े या वो परिंदे भी, जिस तरह से माँ के पेट में बच्चा सेफ्टी रहता ना, उसी तरह ये घोंसले के अंदर भी उस बर्ड्स के जो अंडे या चूज़े भी जो है सुरक्षितವಾಗಿರುತ್ತೆ, दे आल्सो भी वेरी सेफ, उतना सेफ रहती हैं, वैसा उन्होंने तकनीकी से जो है अपना घोंसले को बनती। आದ್ದರಿಂದಲೇ इसलिए हक्कीಗಳಿಗೆ गूड़ू, इसलिए कहते हैं, एक प्रॉवर्ब है, एक मुहावरा, एक कहावत क्या फेमस है तो हक्कीಗಳಿಗೆ गूड़ू मಕ್ಕಳಿಗೆ ताई, मतलब परिंदों को घोंसला, बच्चों को माँ, बच्चों को जितनी माँ ज़रूरत हो उतना ही परिंदों को घोंसला ज़रूरत है। ಎಂಬ गादे कने का एक प्रॉवर्ब, एक कहावत चालू में है, यानी ये प्रॉवर्ब जो है लोग कॉमनली रूढ़ियಲ್ಲಿರುವುದು कहते हैं, लोग इस तरह का कहावत मुहावरा जो है कहते हैं। तो ये 100% सही लग रहा है इसकी परिंदे की जो है लाइफ को देखे तो। नेक्स्ट क्या बोल रही है, स्थल आಯ್ಕೆ यानी प्लेस सिलेक्शन होता है। परिंदे अब अपनी जगह को चुनती हूँ, जिस तरह हमें कोसी एरिया में कहाँ घर बनाना, कहाँ साइड लेना, किस तरह का घर बनना, किधर ये रखना, दरवाज़ा रखना, राइट, किधर क्या रखना, हमाम रखना, किधर जो है टॉयलेट रखना, राइट, किचन किधर, ये सब हमें चुनती नहीं, दे आल्सो सेलेक्ट द प्लेस, परिंदे भी ये जगह को पहले चुनती जबकि वो नेस्ट बनना। तो गूड़ू कಟ್ಟुवಷ್ಟೇ, जितना वो घोंसला बनती उतना ज़्यादा ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳದ, यानी वो घोंसला बनने की जगह भी जो है ಆಯ್ಕೆ, यानी वो चुनती ना हक्किಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, यानी परिंदों की लाइफ में, परिंदों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, महत्वद पात्र वहिಸುತ್ತದೆ, ये बहुत बड़ा किरदार या रोल अदा करता है कि परिंदा जिस तरह से मेहनत स्किल्स दिखा को घोंसला बनती, उससे ज़्यादा जो है वो घोंसले बनने की जो जगह जो उन्होंने सिलेक्शन करती नहीं, इस जगह पर बनना अगर को, वो भी एक बहुत बड़ा जो है रोल अदा करता है। जैसे कि वो कहाँ करती, नभದಲ್ಲಿ हारी, आसमान, आकाशास कई कर, कोई नभा का तो आकाशास कई कर, यानी आसमान से आसमान तक उड़कर
पर्वतಗಳನ್ನು ಏರಿ पहाड़ों तक पहुंचकर आसमान तक उड़कर पहाड़ों तक पहुंचकर सागर द्वीपಗಳನ್ನು अगेन वो ओशन समंदरों को आइलैंड इनको सब पार करते हुए दाटुವ हक्कीಗಳು यानी बोल रहे हैं यानी आसमान के ऊपर जो है उड़ने वाले नभದಲ್ಲಿ हारी पर्वतಗಳನ್ನು ಏರಿ पहाड़ों के ऊपर जो है चढ़ने वाले सागर द्वीपಗಳನ್ನು दाटुವ यानी समंदरों को और आइलैंड्स को सभी पार करते हुए हक्कीಗಳು परिंदे जो है तमगिರುವ अपने आप को जो रहने वाले जो अपूर्व हाराट उनकी जो अनोखी जो उड़ने की जो ताकत है हाराटದ शक्तिಯಿಂದ अपनी उड़ने वाली ताकत का इस्तेमाल कर कर ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ जहाँ चाहे वहाँ पर वो गूಡು निर्मिಸಬಹುದಾದ यानी एक घोंसले को बनाने की जो है अनंत अवकाशಗಳನ್ನು बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को बनाती बहुत सारे जो है मौके को वो अपने आप से पैदा करती जबकि उनकी इतनी ताकत है कि कितना ऊपर आसमान तक भी उड़ते हैं कितना पहाड़ की चोटी तक भी पहुंचते हैं समंदरों को आइलैंडों को पार करते हुए इतनी उड़ने वाली जो अनोखी ताकत का इस्तेमाल कर कर जो है अपना नेस्ट को बिल्ड करती बनाती साथ में बोल रहे हैं सागರದ द्वीप समंदर और उनका आइलैंड्स गिरी शिखರದ नेत्ती माउंटेन के जो चोटी हिल्स मनुष्य नुसुड़लाರದ निबिड़ वन श्रेणी यहाँ तक कि इंसान जो नहीं पहुँच सकता वहाँ तक के जंगलों की जगह घने जंगलों की जगह वन श्रेणी जंगलों की घनी जगहों तक यहाँ तक भी मनुष्य नुसुड़लाರದ इंसान भी पहुँच नहीं सकता उस तरह की जगहों तक भी सूर्यना बेಳಕಿಗೂ इवन जो है सूरज की रोशनी को भी प्रवेश निराकरिಸುವ सूरज की रोशनी भी पहुँच नहीं सकती उस तरह के कग्गत्तल कणी उस तरह के डार्कनेस से भरे हुआ अंधेरों से भरे हुआ वैलीज तक भी जो है रक्त ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವ शीतल ध्रुव प्रदेश पोल पार्ट जो है वहाँ पर भी जो है और यहाँ तक कि जो हमारा खून घट हो जाए ठंड पड़ जाए इस तरह की जगहों पर भी जो है जाकर ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ इस तरह से कहाँ होना वहाँ पे अವು गूಡು कट्टबल्ल वो अपने घोंसले को बनते हैं ये विचारದಲ್ಲಿ इस मैटर में जो है इस जो घोंसले बनने का जो बात है इसमें मात्र सिर्फ हक्किಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಕುಲನವನ್ನು परिंदों को कोसा दूसरा नस्ल कोसा दूसरा चरिंद जानवर संकुलವು ಮೀರಿಸಲಾರದು उनको जो है बीट नहीं कर सकते नो वन कैन बीट द बर्ड्स इन दिस मैटर टू बिल्ड द नेस्ट जो घोंसला बनने का जो सिलेक्शन ऑफ प्लेस है या जो जिस तरह से उन्हें स्किल्स दिखाते हैं वो उस बात को जो है दूसरे कोई भी जो है हरा नहीं सकता मात्रा यारू कूड़ा तो यहाँ बोले कग्गत्तल कಣಿವೆ वन श्रेणी गिरी शिखರದ नेत्ती यानी यहाँ पे दिखाता हूँ देखो पिक्चर में तुम ना माउंटेन माउंटेन वन शिखर आगा तो देखो इसको बोलते हैं इस तरह के बड़े बड़े जो चोटियाँ पहाड़ के चोटियाँ आती इनको बोलती हैं शिखरा ओके शिखरा गिरी शिखरा पहाड़ और इस तरह के बड़े बड़े पहाड़ों की छोटे पहाड़ बड़े पहाड़ों की गिरी शिखरा बोले नहीं तो पिक्चर नहीं दिखाया था तो तुमने पिक्चर दिखा को एक बार बता रहा हूँ गिरी शिखರದ नीति पहाड़ों की और इस तरह की चोटी तक भी वो जाकर जो है घोंसला बन सकता है और कहाँ निबिड़ वन श्रेणी यानी एक घने जंगलों में ये समझ में है ना गिरी शिखरा का तो ये है और क्या बोले तुम नाम हाँ वन श्रेणी का तो डेप्थ जंगल जंगल रेंज तो जंगल के ऐसी जगह जो ऐसे घने घने जंगल न जाने कौन से जानवर रहते हैं मालूम नहीं तो इस तरह के घने जंगलों तक भी जो है पहुंचकर जो है अपना घोंसला बनाने की ताकत जो है परिंदों को रहती है
कितना जंगल है, कहीं कहीं भी गया तो वापस इंसान आ नहीं सकता, कहाँ हूँ मालूम नहीं होता। ऐसा इस तरह के जंगल में भी जो है इंसान घुसना मुश्किल है, पता नहीं कौन सा बाघ आ जाए, कौन सा वहाँ पे लेपर्ड आ जाए, कब हमको उनका निवाला बना ले, राइट। तो इस तरह के जंगलों तक भी वो पहुँचने की एक जो है खूबी उनके अंदर है। और डार्क वैलीज, कग्गतला कणी वैलीज का ऑलरेडी ये दिखा को हूँ, कणिव है वो भी दिखाता हूँ एक बार। वनश्रेणी मालूम हुआ ना, वनश्रेणी का तो ऐसे जंगलों में, शिखिरा का तो बोले ना उस तरह के पहाड़ी इलाकों में, और डार्क वैलीज। सो इस तरह के अंधेरों से भरे हुआ जो वाली सिंह खंदक है, वहाँ पर भी देखो कितना अंधेरा सा ये है, यहाँ पे देखने एक डरोनी जैसा लगता है नहीं। तो इस तरह के इवन दे विल गो टू दिस प्लेसेस, दे कैन बिल्ड द नेस्ट करके बोल रही हूँ वहाँ पे। इस तरह की जगहों पर भी जाकर जो है वो अपने घोंसले को बन सकते हैं। देखो पिक्चर से ऐसे वाले डार्क वैली, अंधेरे किस्म का, यहाँ रोशनी जा नहीं सकती, तो इस तरह के जगहों पर भी जो है जाकर बनने की खूबियाँ, टैलेंट उनमें रहता है। तो ये तमाम चीज़ें, और ध्रुव प्रदेश बोले यानी वो एक तुमने पिक्चर दिखा तो देख लो, इवन दे कैन वेंट टू द ध्रुव प्रदेश पोल। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल आता नहीं, देखो कितना बर्फीला इलाका होता है, हमेशा बर्फ़ पड़ते रहता है। ऐसे इलाकों में भी जो ध्रुव प्रदेश कहती हैं उसको, तो इस तरह के इलाकों में भी जो है जाकर वो नेस्ट बन सकती हैं, ताकि अपने बच्चों का और आपका हिफाजत हो, अपना ये भी चलते रहो। तो ये हुआ पार्ट 2 में मैं अब तक जो है तुम ना हक्की गुडुगड़ा निगुड़ा जगतु 2 पार्ट में मैं लेसन रीडिंग और समझा करूँ। स्थलायक का एक पैराग्राफ हुआ है, इसका आगे का जो है हमें पार्ट 3 में जो है सीखेंगे।